Thank you, everyone. Thank you so much for being here with us. How does one introduce a woman who mesmerizes with her charm and inspires with her words? A woman Wow. best known for her searing stories that stem from deep personal truths of society. A woman who's had a tryst with words and poetry as she explored and lived in various parts of India. Vandana ji has been an absolute globetrotter. कलम में आपका बहुत बहुत स्वागत. A quick glance at her Thank you. journey fills the heart with pure, unadulterated envy. She is a renowned writer, a columnist with novels like Utopia, Meri Kahaniyan. We devour reading her insightful articles which are published in top journals in the country. Champions social causes and wakes us up from our social torpor as we redefine new India. We are absolutely delighted to welcome you virtually to the city of lakes. We are indeed honored to have such a multifaceted gem sparkling amongst us. I just request, I would just request so on behalf of the Foundation, may we request everybody to mute themselves, please, and turn off their videos except for the author and the conversationalist and Swati Agarwal. Thank you. very, very hearty welcome on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsas Women of Udaipur for this Kalam event. I would like to also welcome Ridhima Doshi. She's an entrepreneur, a culturist, and a voracious reader. She's an integral part of Ehsas Women of Udaipur, and she will be moderating today's session. Thank you. Ridhima, over to you. Thank you, Swati, for the beautiful introduction. Welcome, Vandana ji, to this session. Thank you. कैसा लग रहा है आपको वर्चुअली इस सेशन को अटेंड करते हुए? अब क्या कहूँ, लॉक बंदी में, घर बंदी में, this is the best we could conjure up, isn't it? Otherwise it would have been lovely had I been with you people. You know, a face-to-face interaction is so different from this virtual interaction we are having. But yet, I mean, whatever constraints we have to work within them. So it's fine. I'm very happy to be with you. Very, very happy. Thank you, Vandana ji. And we also feel so good to be connecting with you even in these lockdown times. तो वंदना जी बताइए, आपकी ये लिखने की जर्नी, साहित्य की जर्नी कब और कैसे चालू हुई? क्या कोई कहानी थी या कोई विषमता थी जिसने आपको अपनी कलम उठाने पर मजबूर किया या प्रेरित किया? एक्चुअली मैं बचपन से सिर्फ लिटरेचर पढ़ती थी अच्छे से और मुझे बड़ा शौक था लिटरेचर पढ़ने का. आई बिगैन विथ इंग्लिश लिटरेचर एंड पता नहीं धीरे धीरे जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो लिखने के लिए मैंने हिंदी लिटरेचर चुन लिया, मतलब हिंदी भाषा चुनी. और पढ़ती में बहुत ज्यादा अंग्रेजी का ही साहित्य थी, शौक उसी का बहुत ज्यादा था. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ कुछ मन करता था हमेशा ऐसे में या क्रिएटिव राइटिंग में. स्कूल में बहुत वाहवाही मिलती थी. My teacher used to say कि बड़ा अच्छा तुमने लिखा and all that. So that kind of, you know, motivated me. And I thought कि अच्छा मैं लिख सकती हूँ, मतलब ये एहसास आया कि लिख सकती हूँ. और इसलिए भी आया कि यही बेहतर कर सकती हूँ क्योंकि मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकती थी, तो आई कुड नेवर बी एन इंजीनियर. तो मुझे लगता था वो इतना बोरिंग है मैथ्स साइंस, बट फिर भी मैंने उसको 12th तक पढ़ा. लेकिन मेरा जो जिसको बोलते हैं ना अंदरूनी मन था
वो हमेशा कहानी, कविता, सिनेमा, इन चीजों में जहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है वहां बहुत ज्यादा रमता था। तो कुछ कुछ छोटा छोटा लिखती थी। I got married early while I was studying in my MA, and my husband is also incidentally a writer and an author and a historian and lots of other things. तो एक माहौल भी मिल गया मुझे, तो लिखना शुरू किया। But he was posted in very small places जहाँ कोई मेरे को वो नहीं मिला कि मैं कैसे एक्सप्रेस कहाँ करूं। तो मैं लिख लिख के फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन विद 2 टाइनी चिल्ड्रन मैं सारी चीजों को अलमारी में बंद करके रखती थी। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक दो हमारे दोस्त लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अपना कुछ लिखा हुआ सुनाओ। तो एक छोटी सी कहानी लाकर मैंने उनको पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा हमें दे दो। हमने कहा तुम क्या करोगे इसमें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम दे दो। एंड ही सेंट इट इन हंस, जो मतलब सभी को मालूम है कि हिंदी साहित्य की वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मैगजीन है। और उसमें मेरा पता भी बहुत जिसको बोलते हैं ना एकदम संक्षिप्त परिचय था, वंदना था, सरनेम नहीं था, घर का पता भी उल्टा सीधा था। तो मतलब उसने इसलिए भेजा कि देखते हैं स्टोरी में दम है कि नहीं, वो अपने बूते पे छपती है। एंड देन मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा अरे मैगजीन इज आउट, तुम्हारी कहानी छप। तो हाउ द जर्नी बिगैन। एंड उसके बाद सब लोगों ने, दोस्तों ने, मेरे परिवार ने और जितने बड़े बड़े लिखने वाले हैं सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत एनकरेज किया। और सब मतलब मैं थोड़ी आलसी किस्म की हूँ, सो आई कुड नेवर लाइक कि नहीं नहीं ये लो इसे छाप दो। आई कुड जस्ट नेवर गो दैट वे। सो इट वाज ऑलवेज फ्रेंड्स एंड फैमिली हु केम टू माय रेस्क्यू। एंड उन लोगों ने ही लेकर मेरी चीजों को, लिखी हुई चीजों को भेजा इधर उधर। एंड फिर ग्रेजुअली यू नो हो जाता ओके लाइक हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ लिखना आता है तो थोड़ा लिख लो। इट इज लाइक दैट। बट दैट इज रियली कमेंडेबल वंदना जी की पहली ही कहानी आपकी हंस पब्लिकेशन के साथ छपी, विच इज अ ग्रेट फीट। इस कहानी के छपने के बाद आपकी जो पहली किताब आई उसमें काफी समय लगा, क्या रीजन था उसका? हाँ, तो जैसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो ब्यूरोक्रेट की जो इनिशियल नौकरी होती है वो गांव और कस्बों में होती है। तो क्या हुआ कि अगले 6 साल उन्हें फील्ड में रहना था। एंड मुझे नहीं समझ में आता था, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, तो मतलब टू कोप अप इन अ स्मॉल टाउन बहुत मुश्किल लगता था। तो उस समय कोई ये नहीं लगता था कि कैसे मैं इस जर्नी को आगे बढ़ा हुआ रख सकूं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सब वही ठप हो गया। उसके बाद मेरे 2 बच्चे, छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे थे उस वक्त। So I thought कि चलो कोई नहीं, we were in a very small township of 60,000 people, जहां पर इंटरैक्शन के लिए भी बहुत मुश्किल से लोग मिलते थे, साहित्य के इंटरैक्शन के लिए। वैसे तो समाज में आप जहां चाहे मन लगा सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि जो भी आज हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, इतनी लॉक बंदी के बावजूद वी आर डूइंग इट। Similarly, I just thought कि okay, I don't have many avenues, but whatever little I have, उसका मुझे I have to make best use। तो मैं उस दौरान दिल्ली से किताबें मंगा के पढ़ती थी। तो वो जो 5-6 साल, 5-6 नहीं, हाँ लगभग 5-6 साल किताब आने के पहले वो पढ़ने में और धीरे धीरे लिखने में बीता। और इसीलिए जो धीरे से लगता था ये हो जाए, आई गेट ट्रांसफर्ड टू अ बिगर टाउन, मैं कुछ और लिख लूं, बेहतर कर लूं और फिर किताब आए, ऐसा लगता था। ये रहा जी। सो ये आपकी सिचुएशन हमारी अभी जो सिचुएशन है काफी कुछ वैसी थी कि जब हम बाहर कुछ नहीं कर सकते तब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। आपकी जो पहली किताब थी उसका नाम है यूटोपिया, जिसका मतलब है कि जो कभी मुकम्मल ना हो सके। तो क्या है ये यूटोपिया और क्यों रखा आपने ऐसा टाइटल? अब जैसे कि आप किताब पढ़ेंगी
तो उसमें सारी कहानियां जो हैं लगभग ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की कहानियां हैं, ऐसी सिचुएशंस की कहानियां हैं जिसमें कभी भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती, अभी भी नहीं हो रही है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत तरह तरह के लोगों की तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो चलिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम कुछ इस तरह की घटना होती है, बट अदरवाइज ऑल्सो जब आप धीरे से लाइफ के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि बहुत हर वक्त हर चीज हर को नहीं मिलती। देयर इज ऑलवेज लेयर्स, देयर इज ऑलवेज दुख का भी लेयर्स। मेरे लिए हो सकता है आज बाहर जाना नहीं जा पा रही हूँ, वो बड़ा दुख है, लेकिन एक मजदूर के लिए दिल्ली से पैदल चल के जाना अपने गांव, वो मतलब उसके सामने मेरा दुख क्या है? इट्स लाइक दैट। लेकिन दुख हर जगह है, दुख मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह का दुख है। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती सोसाइटी में। यूटोपिया, लाइक यू सेड, यूटोपिया का मतलब है सब चीज सही हो जाए, एक आदर्श स्थिति पे पहुंच जाए। और हिंदी वाले इसे कहेंगे राम राज्य, क्योंकि राम को हम लोग लेके चलते हैं कि उनका जो राज्य था वो एक यूटोपियन राज्य की परिकल्पना थी। इट वाज जस्ट लाइक दैट। लेकिन तब भी नहीं था, सीता को राम राज्य का सुख नहीं मिल पाया। तो कहीं भी समाज जो है परफेक्ट, यूटोपिया इज ऑलवेज अ ड्रीम। तो मेरी सारी कहानियां डिस्टोपियन है, लेकिन चूंकि वो एम करती हैं एक यूटोपिया के लिए, एंड प्रोबेबली हम लोग अपने माइंड्स में भी सोचते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक तो है, कई बार ही सोचते हैं। वी आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू एवरीथिंग एल्स इन आवर वर्ल्ड। इट्स वेरी नेचुरल, जहाँ के हम होते हैं हम वहीं आसपास की चिंता ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए कहानियां सारी डिस्टोपियन है, लेकिन उसका आप कह सकते हैं तंज में एक मैंने शीर्षक यूटोपिया रखा। वंदना जी, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं जिसमें आपने ये बोला है कि आपको कोई भी कहानी में या सोसाइटी की जब आप ऑब्जर्व करती हैं अपनी कहानियों की प्रेरणा के लिए, आपको हर सामाजिक विषमताएं ज्यादा नजर आती है ब्यूटीफुल पहलुओं की जगह, ये और वही आपको आपकी कलम चलाती है। हाँ, मतलब ये मेरा लिमिटेशन भी है, क्योंकि मुझे बहुत लोग, जब मैं नया नया लिखना शुरू की थी और I was in my 20s and early 30s and everybody used to say, अरे अभी तो you just passed out college और यूनिवर्सिटी से निकली हो, इतनी युवा हो, तुम्हारे पास बहुत युवा अनुभव होंगे, तो उनको लिखो। लेकिन मैं लिखती क्या हूं? तो यूटोपिया। मैं लिखती क्या हूं? तो झगड़ा। जबकि मैं उस परिस्थिति में हूं भी नहीं। और लेकिन जब किसी का सुनते हो आप या देखते हो, तो आपको वो चीजें बहुत, मतलब मुझे बहुत वैसी चीजें, अब जैसे रास्ते पे हम चल, नजर आएगा, नजर आ सकता है बुरा सा, मतलब आई एम नॉट बुद्धा, आई कैन नॉट बी ऑल्सो। चूंकि मैं तो बहुत लाइफ को प्यार करने वाली, बहुत ज्यादा एवरी मोमेंट को लिव करने वाली पर्सन हूँ, तब भी क्या होता है कि पता नहीं मेरी माइंड की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि मुझे वो बुरी चीज नजर आती है, तो पहले वो लिख देती हूँ और फिर सेकंड टाइम देखती हूँ कि अच्छा गुलमोहर का पेड़ भी था, सुंदर था, तो वो कहीं एक पासिंग में रेफरेंस में आ जाएगा। ये कि मैंने लव स्टोरीज भी लिखी, मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज भी लिखी हैं और बहुत कोमल भावनाओं की कहानियां भी लिखी हैं। इनफैक्ट जो मेरा उपन्यास है, इट इज फुल ऑफ लव एंड होप एंड इमोशन, तो वो भी है। बट ये आपने बिल्कुल सही कहा, दिमाग की नजर जो है वो विषमता पर पहले पड़ती है। राइट। आपने इन अपनी कहानियों के जरिए ऐसे कुछ सामाजिक पहलुओं को आप उजागर करना चाहती हैं जो आपको शायद परेशान करती हैं। ऐसे कौन से सामाजिक पहलू हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहती हैं, या जो अपने दिमाग को हमेशा परेशान करते रहते हैं, जो आपकी कहानियों में भी नजर आते हैं? अब देखिए, जैसे कि एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर करती है
वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ठीक है। क्योंकि बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग ढंग से हुई। मुझे किसी को भी द सेंस ऑफ अदर, कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान अलग है, जैन अलग है या क्रिश्चियन अलग है। मैं पढ़ी भी कॉन्वेंट में थी बचपन में, तो बाकायदा वो मुझे आता था हाउ टू प्रे, एंड आई यूज्ड टू गो टू द कैथीड्रल इन आवर स्कूल। उसका होली वाटर हम लोग एग्जाम के पहले ये करते थे। तो यू नो बचपन से ऐसे जगहों में मैं, बिकॉज पापा का ट्रांसफर होता रहता था, तो बहुत तरह तरह के स्कूलों में पढ़ी, बट इनिशियल एजुकेशन कॉन्वेंट में हुई। तो क्रिश्चियनिटी मुझे कभी कोई डिफरेंट नहीं लगती थी। बहुत सारी लड़कियां थी हमारे ही समय, जब प्रेयर होती थी, दे वर क्रिश्चियन गर्ल्स, तो वो जाती थी कैथीड्रल में, और हमें एक दूसरी प्रार्थना गानी होती थी। ये सारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा थी। फिर मेरे पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो मेरे पापा बोलते थे नहीं ईद आ गई, चलो तुम कबाब खाने फलाना अंकल के यहाँ चलते हैं। तो यू नो द टेस्ट, द कल्चर, एवरीथिंग यू लर्न एज अ चाइल्ड. So this is what I learned, and suddenly I see my country is changed when I grow up. So that bothers me a lot. मुझे वो चीज बहुत दुख देती है, तो उस पे मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ या लिखती हूँ। और रिश्तों में भी जो गैर बराबरी होती है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, उसमें भी जो गैर बराबरी है, जो पेट्रियार्की का एक हमेशा कुछ भी बोलो तब भी पेट्रियार्की हावी रहती है, उसके खिलाफ भी मैं बहुत लिखती हूँ। क्योंकि कहानी में इसको डायरेक्टली तो आप नहीं लिख सकते हो दिस इज पेट्रियार्की, इट नीड्स टू बी रबिश्ड। तो आप उसको एक कहानी बनाते हो, एक बाना बना, जैसे मेरी एक कहानी है छाया युद्ध, तो उसमें बोथ आर यंग, 20s में है कपल, और वो जो बोथ आर वर्किंग विद द IT सेक्टर, लेकिन लड़का जो चाहता है कि वो उसको ज्यादा मदरिंग करे, और लड़की तो फील्स वेरी इंडिपेंडेंट, कि अरे यार मैं क्यों करूं, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ, दोनों साथ के हैं, एक ही तरह की नौकरी करते हैं। तो शी वांट्स कि हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहेंगे जैसे शादी से पहले थे। पर शादी के तुरंत बाद क्या हो जाता है कि ही स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि अब वो मेरी मदरिंग करे, मुझे अच्छा बना के खिलाए। और ये जानती हो ये चीजें ना, मतलब हो सकता है कि 20s में आए, कभी 30s में आ जाती, कभी 40s, कभी 50s, 60s में भी मैंने कपल्स को देखा है कि सडनली रोल रिवर्सल, जो रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी अलग अलग रहते थे अलग अलग डोमेन्स में, सडनली साथ होते, तब भी जो हस्बैंड है वो चाहेगा कि उसकी पत्नी उसकी देखभाल करे लाइक अ बेबी। तो ये बातें भी, जैसे रिश्तों में भी जो गैर बराबरी है, अनइक्वल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, वो मुझे पसंद नहीं, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, और उसपे मेरी कलम चलती है। एंड इट कैन, जैसे मैं आई हैव ओल्डर चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, सो आई स्पीक अ लॉट विद देम, तो उनसे भी मुझे पता चलता है कि अरे अभी भी सिचुएशन नहीं बदली, गर्ल्स के लिए अभी भी सबसे बड़ी बात शादी करना ही होता है। यू नो दीज थिंग्स डिस्टर्ब मी, रोल ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी, दैट डिस्टर्ब्स मी। ट्रू, ये है। एब्सोल्युटली वंदना जी, आपने ऐसे कई नाटक भी किए हैं, कई नाटकों में हिस्सा लिया है जहां आपने नारी सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया था। और मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी पर्सनल करियर लाइफ में क्या ऐसा कभी महसूस किया है, एज अ राइटर ऐसा कभी महसूस किया है कि आपका आंकलन अपने मेल काउंटरपार्ट्स के हिसाब से कम हुआ गया हो, या उस तरह से तोला गया हो, बीइंग अ लेडी राइटर? अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना, और हम सब इस पे जूझते हैं, और सारी विमेन राइटर्स, और फिलहाल तो हिंदी साहित्य में ये हो रहा है कि आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर कि ज्यादा औरतें ही लिख रही हैं इस वक्त, एंड 3-4 जनरेशन्स की औरतें लिख रही हैं। जैसे हमारी बहुत सीनियर राइटर्स अभी भी सक्रिय हैं, लगातार लिख रही हैं, नॉवेल्स लिख रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें लिख रही हैं, छोटा छोटा कुछ है, ये नहीं कि अपने को प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो हैं, ऐसा नहीं है, वेरी एक्टिव। और मतलब you'll be surprised कि इतनी एक्टिव हैं कि they're doing lives every day,
और खुद के पेज से कर रही हैं, तो ये बहुत ही हार्टनिंग बात है। एंड दे आर इन देयर 70s 80s 60s, ऐसी लेडीज भी जो वुमेन राइटर्स हैं, दे आर सो एक्टिव, दे आर राइटिंग, दे आर ऑन लाइव एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। उसके बाद के जनरेशन वाली राइटर्स भी हैं, फिर हम लोग भी हैं, और फिर हमसे भी जो जूनियर्स हैं 30 समथिंग्स एंड 20 समथिंग्स, वो लोग भी कर रही हैं, लिख रहे हैं। तो इस समय मेरा ये मानना है कि इतना ऑनस्लॉट है विमेन्स राइटिंग का कि निग्लेक्ट करने का सवाल नहीं उठता है, देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन ये बात सही है कि जो हमारी सीनियर्स बताती हैं कि उनके समय में जिस तरह से आदमियों का आकलन होता था, मेन राइटर्स का होता था, वैसे औरतों का नहीं होता था। और हमने जब लिखना शुरू किया वही 90s में, तो ऐसा लगता था कि शायद हमारी कोई बहुत अच्छी कहानी उस तरह से नहीं, मतलब अलक्षित रह गई, पीपल हैव नॉट सीन इट, और उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट दो चीजों ने इस चीज को पूरी तरह बदल दिया। एक, डिजिटल मीडिया ने, प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए कि अब कोई आपको निग्लेक्ट कर नहीं सकता। आप कुछ नहीं करो, आप अपनी चीज लिख के डाल दो, है ना, फेसबुक पेज पे डाल दो, इंस्टा पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, ट्विटर पे उसके बारे में ट्वीट कर दो, लोग ऑटोमेटिक जाकर आपकी किताब खरीद लेते हैं। दैट हैज चेंज थिंग्स। दूसरी चीज की औरतें ज्यादा सशक्त हो गई हैं, लिखने वाली औरतें कम से कम। दे हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट मेल्स, राइटर्स, सीनियर्स, जूनियर्स, एवरीबडी टू असेस देम। वो उनको अब जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि आलोचना में, क्रिटिसिज्म में अभी भी बहुत सारी औरतें नहीं उतरी हैं, लेकिन वो अपना मुकाम बना रही हैं। जरूर, ये डिफरेंस। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट्स ऑल्सो, उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और रेज योर हैंड वाला एक ऑप्शन है, उसको आप जरूर से क्लिक करें, एंड आफ्टर द सेशन एंड्स we will take our questions from the audience as well. राइट। वंदना जी, एक बात बताइए कि आपने शुरुआत करी छोटी कहानियों से, शॉर्ट स्टोरीज से, और उसके बाद आपकी जो किताब आई बिसात पर जुगनू, वो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप पर लिखी गई, 1857 की युद्धनी, अफीम युद्ध के बाद जो चीनियों के बुरे हालात रहे उसके ऊपर। तो क्या रीजन था, मतलब शॉर्ट स्टोरीज और फिक्शन से आपने एक पॉलिटिकल मुद्दा चुना लिखने के लिए, और क्या है ये बिसात पर जुगनू? इस किताब के बारे में हम सबको बताइए। तो बिसात पर जुगनू मेरे पास है, ये है मेरा नॉवेल। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट। ये है नॉवेल मेरा, और इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल, सोशल और हिस्ट्री में एक पीरियड नॉवेल है। तो ऐसा नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट रहा, मेरी कई कहानियों में भी उसके रेजोनेंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत दिनों से ये एक पीयर प्रेशर था मेरे ऊपर, खुद का बनाया हुआ भी, कि मुझे एक बड़ी चीज लिखनी है और एक बड़ा उपन्यास लिखना है। बट वही होता है कि अगर आप बहुत लेजी भी हो और बहुत सोचते भी हो कि अच्छा लिखना है, तो आप बहुत समय लगा देते हो उस मोमेंट में अराइव करने के लिए। तो बस इसीलिए वक्त लगा, बहुत सारा वक्त लगा। देखिए, मेरी फर्स्ट बुक आई थी 2010 में और नॉवेल आया 2020 में, तो इट टुक मी सो मेनी इयर्स। लेकिन ये जरूर है कि मैं ये उपन्यास जो आपने पूछा कि किस बात पर है, ये इंडो चाइना रिलेशनशिप्स जो 1840 टू 1910 के बीच थे, तो उसके बीच में, उसके बारे में है। और ये 3 डिफरेंट कहानियों पर है, 3 परिवारों की कहानियां हैं। एक जो यहाँ पे एक फिक्टिशियस विलेज है चांदपुर, वहां की कहानी है, और दूसरा जो एक पटना, एक शहर है बिहार का जो कैपिटल है पटना, वहां की कहानी है। और तीसरी जो है जिसे आजकल ग्वांगडोंग बोलते हैं, कैंटन, पुराने जमाने में उसे कैंटन बोलते थे, चाइना का शहर है,
वहां की कहानी, वहां के एक परिवार की कहानी है। तो उस दौरान एक चीज कॉमन थी रिद्धिमा, दोनों के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। मतलब उनका एक डायरेक्ट शासन नहीं था उनके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, पर हमारे ऊपर था। तो लेकिन जो हमने जो दुख देखे दोनों जनता ने, यहाँ की और वहां की, वो लगभग सिमिलर काइंड्स थी। और ट्रेड जो होता था, ट्रेड में सिर्फ ओपियम के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ओपियम जाता था, अफीम जाता था, लेकिन उसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें, चाय, मायका, ऐसी चीजों का भी ट्रेड होता था। और दोनों जगह में ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। यहाँ पर 1857 हुआ, 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वहां पर बहुत सारे रेबिलियंस हुए अगेंस्ट द मांचू रेजिम जो वहां थी, और अंग्रेज भी। तो अ पीरियड ऑफ बैटल, सॉरो, ये सारा चीज एकदम कॉमन था, लेकिन और हम लोग सब साथ थे। तो इसीलिए मुझे लगता था कि that fascinated me, and I was a student of Chinese and Japanese studies in MPhil. तो उसी समय से it used to fascinate me कि इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है, लेकिन हुई, और वो अंततः मेरे नॉवेल में आई। हम सब वेट कर रहे हैं अब उस नॉवेल को पढ़ने का और रीड करने का, उन कहानियों को। आपने एक बुक भी ट्रांसलेट करी वंदना जी, एज ऑफ कैपिटल। तो अगर हम इंडिया में देखें तो आपका जो चाइल्डहुड रहा, that was when capitalism was not so important, like was not a part of India that much, and अब जब अपन बड़े होते हैं और आज की सोसाइटी देखते हैं तो capitalism has become so important, liberalization हो चुका है इंडिया में। आपको क्या फर्क लगता है उस एज में जो आपके चाइल्डहुड वाली सोसाइटी थी, how it has affected our society in general, capitalism? देखिए, जब मैं स्कूल पास आउट कर रही थी तब ओपन मार्केट इकोनॉमी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जब व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड तब ओपन मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो सोसाइटी वाज मच सिंपलर। बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां होती थी, बहुत कम मोबाइल फोन्स वगैरह, तो यू कांट ड्रीम। टीवी हमारे समय में आ गया था, हमने एशियन गेम्स देखा, टीवी पर ही देखा। तो ये सब मतलब थोड़ा मिला जुला था। इट वाज नॉट लाइक दिस, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड इन कॉलेज तो 90s में तो खुल के पूरी तरह से कैपिटलिज्म आ चुका था। फर्क यही लगता था अपने पेरेंट्स को जब देखती थी, मतलब अभी मैं अपने से तो कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी उसकी ही कैपिटलिस्ट एरा की ही थोड़ी बहुत प्रोडक्ट मानी जाऊंगी, लेकिन हाँ पेरेंट्स के बारे में बोल सकती हूँ कि उन्होंने वो जमाना देखा जिसके बारे में वो बोला करते थे कि सब कुछ कितना सिंपल है। अभी भी जैसे मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं, अरे यार इससे काम क्यों नहीं चल सकता, आपको और ज्यादा क्यों चाहिए। और मोर टुवर्ड्स गांधीयन फिलॉसफी, वो लोग उसको पसंद करते थे। जैसे उनको नहीं अच्छा लगता है कि बच्चे बार बार खाना बाहर से क्यों मंगाना चाहते हैं, इट्स छोटी छोटी चीजें लाइक दैट, घर का खाना क्यों नहीं हो सकता। तो फर्क तो हमारे बड़े होने के समय में ही आ गया था, और हमारे पेरेंट्स उसको वैसे ही कंपेयर करते थे, और ज्यादा वो लोग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसी बातें करते थे। और हम भी वैसे नहीं रहे, मतलब हम जब बड़े हो गए, अपने में हो गए, तो हम भी वैसे नहीं रहे। हम भी सिंपल लिविंग तो नहीं करते हैं, हम हर चीज पाना चाहते हैं, सब कोई। तो एक और चीज रिद्धिमा इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि गांधी की बातें जब बताया करते थे पेरेंट्स, और ऐसे सिंपल रहना चाहिए विचार वगैरह, तो बचपन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। अभी क्या हुआ है, कोरोना के समय सबको गांधी की तरह ही रहना पड़ रहा है, चाहे उसके पास चॉइसेस हो या ना हो। तो मैं अपने बच्चों को ये बात बोली थी, यार मैंने तो सोचा नहीं था कि जो बात मेरे पेरेंट्स बोला करते थे वो मैं तुम लोग को बोलूंगी कि इतने कम चॉइसेस में रहो, हम रह सकते। तो कुछ चीजें दे कीप कमिंग बैक। Now we all know it is possible and achievable. We have lived it. Yeah. We're doing that. Yeah, we are doing that. Exactly. वंदना जी, एक और बात बताइए कि ये सवाल मेरे अंदर बहुत बार उठता भी है। आई एम अ मदर ऑफ 2 young children.
एंड मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन दिस जनरेशन ग्रोज अप, हिंदी साहित्य का इनकी लाइफ में जब ये ग्रो करेंगे और इनके यूथ में जब ये किताबें पढ़ेंगे, उस समय हिंदी साहित्य को आप किस तरह से देखते हैं? तभी भी वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा या उसकी जगह इंग्लिश लिटरेचर ले लेगा जब ये आज ये वाली जनरेशन बड़ी होगी और ये जब लिटरेचर पढ़ेंगे? क्या आपको लगता है हिंदी साहित्य लुप्त होता जाएगा या आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है रिद्धिमा, क्योंकि हम तो अपने रहते हुए ही देख रहे हैं कि मेरे खुद के बच्चे वो तो नहीं पढ़ते हिंदी साहित्य, उन्होंने मेरी किताबें नहीं पढ़ी, कुछ कहानियां जरूर पढ़ी हैं क्योंकि मैं फोर्स करके उनको सुनाती थी, तो पढ़ी नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन आई चोज टू राइट इन हिंदी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग हिंदी अ लॉट। तो हो सकता है, मतलब मैं आशावादी हूँ, इसलिए शायद ये सोच सकती हूँ कि हमेशा एक रिवर्सल, इट्स अ साइकिल शायद। तो सडनली अभी हम लोग ये प्राउड कि हम भारत देश में, जैसे किसी ने मुझे आज बोला कि मैडम हम लोग नमस्ते करने लगे, मतलब नमस्ते तो अच्छा नहीं मानते थे, हग करते थे ये, तो हम लोग मैडम नमस्ते कर रहे हैं। देखिए हमारे देश की, क्या पता कोरोना हो या कोई ऐसी आपदा हो या दैट प्राइड टुवर्ड्स लैंग्वेज हो, कभी ना कभी आ जाए, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत ये करनी होगी कि बच्चों के लिए भी अच्छा साहित्य अगर कहीं मिल रहा है तो बचपन से ही उनको 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करनी होगी। बेसिकली हमारा क्या हुआ है, पैटर्न ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, हमने उनको भाषा से दूर किया। हम उन्हें बस इंजीनियर, डॉक्टर या आईटी सेक्टर में भेजना चाहते हैं, सच बात यही है। तो और ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फिनोमिना नहीं है, हर कोई यही चाह रहा है आजकल, या बिजनेस हो या कुछ हो। तो उसमें क्या है, लैंग्वेज को हम उनके जीवन से हटा देते हैं, उसका महत्व एज पेरेंट्स हम खुद ही कम कर देते हैं। मुझे पता है मेरे साथ के बहुत सारे पेरेंट्स कहते थे कोई बात नहीं, इतने हिंदी में आप पास हो जाओ बस, छोड़ना तो है, संस्कृत पास हो जाओ बस, छोड़ना तो है ना। तो ये जो एक चीज है, ये चीज हमारे एटीट्यूड से एज पेरेंट्स हमें खत्म करनी होगी, हमें खुद भी ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रकाशन आ गए हैं दैट आर पब्लिशिंग इक्वली गुड हिंदी लिटरेचर, बहुत सारे। 2 मैगजीन्स हैं, साइकिल और प्लूटो, भोपाल के एक तारा पब्लिकेशन से निकलती हैं, आप उनको मंगा कर एक बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। उनका स्टैंडर्ड जो है किसी भी वर्ल्ड की अंग्रेजी किताब से बेहतर है, बच्चों की किताब से। बट वो हमारे इंट्रोड्यूस करने, थोड़ी मेहनत करने की बात है, हम इंट्रोड्यूस करें अपने बच्चों को ऐसे साहित्य से, तो बच्चे धीरे धीरे, और भाषा हमेशा ज्यादा सिखानी चाहिए जी। अंग्रेजी भी खूब अच्छे से सिखाना है, हिंदी भी सिखाना है, आपकी अगर पंजाबी भाषा है तो वो भी सिखाओ, अगर तमिल है तो वो भी सिखाओ। सिखाते हैं, हम हिंदी भाषी थोड़ा कम सिखाते हैं। तमिल बच्चा तो आज भी तमिल जानता है, मराठी बच्चा जानता है, बंगाली बच्चा बंगाली बोलता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, सिर्फ अंग्रेजी थोड़ी बोलता है। तो एज पेरेंट्स ये हमारा दोष भी है कि हमने अपने बच्चों को भाषा से दूर किया। अगर हम चाहें तो वी कैन री इंट्रोड्यूस, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, धीरे धीरे छोटी छोटी कविताओं से, 4-5 लाइन की कहानियों से बात शुरू करेंगे, बात हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वंदना जी। एक और बात ये है कि जो शिफ्ट हम देखते हैं फॉर नॉलेज और फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, पहले जब हम देखते थे तो हम सभी, जब हम भी ग्रो अप कर रहे थे, तो वी वुड ऑलवेज टेक अ बुक एंड रीड टू नो अबाउट अ सब्जेक्ट। बट नाउ दैट हैज टोटली चेंज्ड। अभी हमें कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी एंटरटेनमेंट की जरूरत हो, तो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ईदर नेटफ्लिक्स और वी लिसन टू द पॉडकास्ट। So a lot of our free time has been taken up by the Netflix and the podcast, and the younger generation prefers to see and hear than to read. So as a writer, what do you feel, what steps as a society we should take in order to promote reading? वही जो मैंने कहा कि शुरुआत पेरेंट्स को खुद से करनी होगी। आप शुरू कीजिए एक किताब पढ़ के सुनाना। देखिए सुनना तो हमें भी, अगर कोई सुनाएगा
या थिएटर के रूप में कहानी दिखाएगा, सिनेमा दिखाएगा, हम किताब छोड़ के हम भी वही करेंगे। ये एक नेचुरल सा फितरत है इंसान की। इट वांट्स टू चूज द इजियर वर्जन ऑफ थिंग्स। लेकिन थोड़ा जैसे अगर हम चाहते हैं कि बच्चा लिटरेचर भी अप्रिशिएट करे, जैसे हमने किया बचपन में, तो उसके लिए हमें उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस, सेकंड स्टेप इज टू रीड इट आउट टू हिम, देखो बेटा ये कविता कितनी सुंदर है। और फिर तीसरे में मेक श्योर कि बेटा ये जो तुम इस पे किंडल पे पढ़, देखिए किंडल पे भी पढ़ रहे हैं लोग, आखिर मेरे पब्लिशर ने भी किंडल पे किताब निकाली, तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट है, पढ़ तो रहे हैं। गार्जियन का आर्टिकल मैं फोन पर ही पढ़ती हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं आता मेरे पास, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स का मेरे पास फोन पर ही आता है, तो वो तो रहेगा। लेकिन विदेशों में देखिए ऐसा हुआ है कि किताब छपनी और पढ़नी बंद नहीं हुई है, जबकि ये साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें वो कल्चर लाना है, हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो बन गए विदेशी, नहीं बने। अभी एक बहुत अच्छा सेशन मैंने देखा जेएलएफ का, जिसमें उरहान पामुक जो मेरे फेवरेट राइटर हैं, उनसे ये सवाल पूछा था कि डोंट यू थिंक कि रीडिंग का वो कम हो गया। बोले हाँ कम तो हो गया है, पर ठीक है, मेरे रीडर्स 40,000 अर्जेंटीना में है, 30,000 कोरिया में है, इंडिया में भी 30-40 हजार होंगे, टर्की में तो खुद 80,000 हैं। तो आई थॉट ये टर्की में लिखता है, टर्किश में लिखता है, और इस बंदे की, इसके देश में, टर्की हमारे सामने कितना छोटू सा देश, पर इसके देश में 80,000 लोग, 1 लाख लोग इसकी किताब पढ़ते हैं, उसी भाषा की किताब पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ ये नहीं आया, टेलीफोन नहीं आया या ये नहीं आया, बट दे केप्ट प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ रीडिंग लिटरेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जेंटीना में अगर एक फॉरेन राइटर की 40,000 किताब बिक रही है, विच इज सच ए ग्रेट अचीवमेंट, कि स्पेनिश में ट्रांसलेट होके अर्जेंटीना में वो 40,000 में बिक रही है। साउथ कोरिया में वो साउथ कोरियन भाषा में ट्रांसलेट होके 30,000 बिक रही है। इंडिया में अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके उसकी किताब 40,000 बिकती है। तो है दुनिया, पढ़ने लिखने की भी दुनिया है, हमें मेहनत करनी होगी एज अ सोसाइटी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वंदना जी। आई थिंक अब हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, एंड दे वांट टू इंटरैक्ट विद यू। इससे पहले मेरा ये है कि आप कोई भी ऐसी पंक्तियां हमें पढ़ के सुनाना चाहेंगी अपनी किताब में से जो आपके दिल के बहुत करीब है। एज अ राइटर सारी ही पंक्तियां करीब होती हैं, बट ऑफ कोर्स सभी गेस्ट्स को अगर आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहें अपनी किताब में से। अच्छा, तो मैं अपनी जो सबसे नई किताब है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा कोई ढूंढती हूँ और वो सुनाती हूँ। तब तक आप लोग प्रश्न अगर आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं जी। चलिए, मिल गया है तो मैं सुनाती हूँ। जो मैंने आपसे बताया था कि जो दोनों देशों के संबंध हैं, उसमें 2001 भी एक इम्पोर्टेंट मेरा हिस्सा है, जिसमें लीना नाम की एक लड़की है, who's come to find out कि ये जो किताब जिस चीज के बारे में है कि उस समय कैसे हमारे संबंध थे, she's come to research, तो उसके बारे में, उसको उसके साथ एयरपोर्ट पे क्या होता है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, फरवरी 2001। दुनिया के 20वें आश्चर्य जैसा आश्चर्य था लीना का पुलिस द्वारा पकड़ा जाना। दरोगा ने उससे बस इतना ही पूछा, फ्रॉम ग्वांगडोंग? उसने कहा यस, और दरोगा ने धीरे से महिला पुलिसकर्मी को बुला उसके हाथ से सामान जब्त कर लिया और पूछताछ के लिए एक कमरे में ले चला। वह जब तक कुछ समझती, दरोगा उसे सामने बिठाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरोगा निश्चित करना चाहता है कि उसके अंदर ठीक से प्रवेश किया जा सकता है या नहीं। वह औरत है या औरत के शरीर में कोई लड़का। दरोगा उसके स्तन के उभार भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, उसके दिमाग तो पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं था। वह कैसे समझाती दरोगा को कि भाई देह नहीं जरूरी, मेरा काम बहुत बहुत
अगर मन के काम की सजा जेल है तो डाल दो ना जेल में, लेकिन यहां इस तरह बैठा कर वक्त बर्बाद मत करो। लीना के हाथों में बेड़ियां हैं, वो समझ रही है कि सामने बैठा ये इंडियन पुलिस महकमे का दरोगा बेमुरव्वत है, उतना ही जितना उसके देश का दरोगा या दुनिया के किसी भी देश का दरोगा। उसने अपनी कैंटन की मिश्रित हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समझाने की कोशिश की। जरूर कोई गलतफहमी हो रही है आपको, शायद आप वो समझ रहे हैं मुझे जो मैं नहीं हूं। आई एम इन इंडिया फॉर रिसर्च। लेकिन जब उसने सर उठाकर दरोगा की ओर जवाब की आशा में देखा तो उसे लगा जैसे दरोगा के कान बंद हो गए थे। और ये चैप्टर एंड करता है, उसने वादा किया है कि वह अपने इस सफर के सिलसिलों को कभी खत्म नहीं करेगी। वह खोज निकालेगी दुनिया का ऐसा नक्शा जो उसकी प्यारी माँ ने कभी उसे इशारों में बताया था। उसकी प्यारी माँ जो दुनिया के लिए हक की बात करती, उसकी प्यारी माँ जो अपनी सुंदर आंखों की स्क्वायर को रोशन कर रही आवाज थी। वह आवाज जो टैंक के बारूद से भी ज्यादा बारूदी थी। वह आवाज जिसका धमाका पूरी दुनिया में गूंजा था। वह आवाज जो बारूद के राख बनकर भी चुप नहीं हुई थी। वह आवाज फिर चिड़ियों ने अपनी बोली के रूप में अपना ली थी और उसे रोज सुनाकर बड़ा और बहादुर करती थी। उसकी ये सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया माएं उसके घर के इर्द गिर्द पेड़ों पर रहती थीं और आकर उसे जिंदगी के गीत सुनाती थीं। वे उससे कहती थीं, दुनिया और प्रकृति को खत्म करने के लिए हर युग में कुछ सनकी जन्म लेते हैं। उन्हें लगता है उनकी उंगलियों पर नाचने वाली दुनिया की नई व्यवस्था हमें मिटाकर बनेगी बिटिया रानी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखना, वे हमें मारेंगे तो हम खत्म नहीं होंगे। हम भी हर युग में उन्हीं की तरह पैदा होंगे और अपने गीत गाएंगे। प्यारी बिटिया, देखो हमारी ओर, गाओ हमारे संग। वेरी ब्यूटीफुल वंदना जी, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, और now it makes us more curious to read this book further. Yeah, you must. I'll be very happy if people read my book. Definitely we will. वंदना जी, अब हमारे गेस्ट भी आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हमारा आपके लिए पहला सवाल है वैभव नागर जी की ओर से। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। आई थिंक राजी विल अनम्यूट हिम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आपने अनइक्वल रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। हाँ जी मैम, आपको लगता है ये अनइक्वल रिलेशनशिप कभी इक्वल हो पाएगा? क्योंकि हम आज भी देखते हैं जो लड़के और लड़की की अपब्रिंगिंग है वो बहुत डिफरेंट है। ऐसे में मैम हमें एज अ हेल्दी सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस डिफरेंस को पाट कर रखें। हम डिफरेंस पैदा ना होने दें। एज पेरेंट्स हम कोशिश करें बिटिया और बेटे में, मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करें। बेटी को भी उतना ही एम्बिशियस बनाए जितना बेटे को बनाते हैं। चीजें बदल जाएंगी, बदल ही रही हैं। राइट मैम। वंदना जी, हमारा अगला सवाल है राजेश जैन जी की ओर से। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कैन वी अनम्यूट हिम? हाँ। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि जी। अभी तक आपने जिन्हीं सब्जेक्ट्स पे लिखा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप लिखना चाहते हैं लेकिन अभी तक लिख नहीं पाया है? हाँ, ऐसा सब्जेक्ट है जरूर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा है, पर जिस व्यवस्था में मैं रहती हूँ, जो मेरा सिस्टम है, उसके बारे में अभी तक बहुत लिख नहीं पाई हूँ। वो लिखना अभी बाकी है और मैं सोचती हूँ कि कुछ सालों बाद जब थोड़ा सा और उम्र दराज हो जाऊंगी तो उस सिस्टम के बारे में भी लिख लूंगी। जरूर लिखना चाहूंगी।
Thank you, Vandana ji. Thank you. The next question is from Kaushik Chatterjee. He asks you, Vandana ji, privileged to be your audience. I have 2 questions. Who is your favorite author in Hindi and why? And which authors would you recommend for child and teen Hindi literature? Okay, so I cannot take just one name. बहुत सारे राइटर्स मेरे इंस्पिरेशन हुए हिंदी में. कृष्णा सोपती मुझे बहुत पसंद है और भीष्म साहनी मुझे बहुत पसंद हैं, और उस दौर के जितने राइटर्स आप सोच सकते हैं, यशपाल का झूठा सच मुझे बहुत पसंद है, अज्ञे की कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, और इस तरह से बहुत सारे आगे चलते हैं तो बहुत सारे विमेन राइटर्स हैं हमारे समय की. ममता कालिया हैं जो बहुत सीनियर है हमसे, नासिरा शर्मा है, उन सब की राइटिंग्स पसंद हैं. मेरे समकालीन हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सब की राइटिंग्स पसंद हैं. लड़के और लड़कियां दोनों, इसमें मैं फर्क नहीं कर सकती हूँ. और हो सकता है अभी नाम भी छूट रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जो तमिल के हैं, और जो अभी मैंने एक बहुत अच्छा उनका कर्नाटक का गाबर घोचर करके एक नॉवेल आया, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, वो पढ़ा है. तो इस तरह से बहुत सारे रीजनल राइटर्स भी, शंखो घोष बंगाल के, और बहुत, बंगाल तो इज लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट. बल्कि मुझे सत्यजीत रे का लेखन भी पसंद है, सिनेमा तो पसंद ही है. तो आई हैव बीन एन एविड रीडर. तो हिंदी और रीजनल भाषाओं का बहुत सारा साहित्य मैंने पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो. और दूसरी चीज पूछी थी बच्चों के लिए कौन से अच्छे लेखक हैं. तो बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे राइटर्स हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए लिखते हैं, और ये बहुत सैड बात है, लेकिन यही सच है. पर बड़े लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे, विनोद कुमार शुक्ल, उनका नाम भूल गई थी, मंजूर एहतशाम, ये सब मेरे बहुत ही प्रिय राइटर्स हैं. शानी हैं और राही मासूम रजा हैं. इन सभी राइटर्स ने भी बच्चों के लिए, खासतौर से विनोद कुमार शुक्ल ने अभी बहुत अच्छा अच्छा बच्चों के लिए लिखा है. प्रियंवद हैं, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं. और नरेश सक्सेना हैं, लखनऊ में हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं बच्चों के लिए. और मतलब आप सोचते रहिए, अंग्रेजी में तो बहुत लोग हैं ही जो लिख रहे हैं बच्चों के लिए. दीपा अग्रवाल जी हैं, रस्किन बॉन्ड, मतलब मैं उनको इंडियन भाषा का ही राइटर मानूंगी, भले ही वो अंग्रेजी में लिखते हो, पर इथॉस उनका पूरा इंडियन है. तो बच्चों के लिए ऐसे राइटर्स भी बहुत सारा लिख रहे हैं. एक प्रभात करके कवि हैं, राजस्थान के हैं, वो बच्चों के लिए बहुत सुंदर चीजें लिखते हैं, आपके राजस्थान के ही हैं वो. तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं. अगर हम पत्रिकाओं को उल्टेंगे पलटेंगे और पढ़ेंगे, खोजेंगे, तो बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे बच्चों के लिए भी. बिल्कुल. वंदना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनंदा जी की ओर से. मैं उनको अनम्यूट करती हूँ. हाँ जी, वंदना जी, it's a pleasure to interact with you. Thank you. And for me, a doctor, it's a good diversion away from the corona times. So, दो प्रश्न हैं. One, you think in English, because I note that you keep lapsing into the English language when you talk, and writing in Hindi. Are these two mediums ever at loggerheads? And do they prevent you from expressing yourself completely? And the second question is, are these COVID times going to color your writing in the near future? Okay, so language, no. I can think equally in Hindi, talk in Hindi, English as well. वो तो आज हमने सेशन ऐसा पहले से ही प्लान करके रखा था कि हम दोनों भाषाओं में करेंगे, वरना हम सिर्फ हिंदी में भी कर सकते थे. और मुझे लगता है कि कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं और लिटरेचर के प्रति हमारा पैशन होता है, तो हर भाषा हमें एनरिच करती है, समृद्ध करती है. कभी भी वो हमें लॉगर हेड्स पे नहीं आती. मेरे केस में तो मुझे कभी नहीं आया. मुझे हर बार सोचते वक्त सुंदर शब्द ही आए, और मान लीजिए कभी हिंदी का कोई शब्द नहीं आया तो अंग्रेजी का आया, वो अनुवाद करके वो भी उतना सुंदर हो गया, या अंग्रेजी में लिखा हिंदी का कोई सुंदर शब्द आया. तो
उसका अनुवाद करके वो सुंदर हो गया, लॉगर हेड्स पे बिल्कुल नहीं। कोविड टाइम्स यस, पिछले 2.5 महीने 3 महीने से मैं ये तो नहीं कहूंगी यू आर अ डॉक्टर यू नो बेटर, बट डिप्रेशन जैसी स्थितियों में हम लोग सब पहुंच गए, स्पेशली राइटर्स, थिंकर्स, जो लोग ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो सारे लोग जो सड़कों पर हैं, सब एक अलग ढंग से बहुत अवसाद में चले गए हैं, बहुत दुखी हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों दुखी हैं, पर हैं। राइटिंग, चूंकि मैंने एक अक्षर नहीं लिखा है, छोटे छोटे रिपोर्ट्स लिखे हैं लेकिन एक भी अक्षर नहीं लिखा है, तो ये जरूर है कि आपने बहुत सही सवाल किया कि कोविड का असर राइटर्स पे जरूर आने वाला है। हो सकता है कुछ राइटर्स इसी बहाने स्पिरिचुअल हो जाएं, हो सकता है कुछ जो अपने अंदर डलनेस महसूस करते थे वो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि टाइम्स इतने अनप्रेडिक्टेबल हुए, हमें पता ही नहीं चला, वी वर कॉट ऑफ गार्ड्स, तो हमें पता ही नहीं चला कब उसने आके हमें दबोच लिया। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। फिलहाल मैंने कोविड के ऊपर एंड पूरा जो मेरे अंदर ट्रेजेडीज भर गई हैं उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, पर हाँ, आई होप टू राइट इट समडे विथ अ मोर डिस्पैशनेट माइंड। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑल ऑफ अस एंजॉयड द सेशन। I hand over the mic to Swati now. She will take over. Okay, thank you Ridhima. Thank you. Thank you Vandana ji, it was such a pleasure listening to you. Before, I wanted to ask you one question. You talk very, very passionately about gender equality. And I feel that a lot of times in our books, in our movies, we paint very monochromatic depictions, especially popular representations. Agar aap jaise Ramayan ka lo, so Sita is depicted as being very obedient, stereotypical, demure, also exploited to an extent. And you take the other extent of someone like Kekai. Now she is depicted as being wicked, vampish, conniving. She's never shown as a politically astute queen. And these kind of representations add credibility to thoughts of people like you, me, anyone who's watching. So what do you think? Don't you think script writers, authors have a greater responsibility and must make a deliberate attempt to change the perception of a reader? That is so true, Swati. And वही कोशिश जो रिधिमा ने पूछा भी मुझसे कि यूटोपिया क्या है, वो तो कभी हो नहीं सकता, हम हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में ना हो, पर जेंडर इक्वालिटी के लिए तो हमें लड़ते रहना पड़ेगा। इफ नॉट फॉर अस, फॉर आवर डॉटर्स, देयर डॉटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये हमेशा से विमेन राइटर्स की ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ज्यादा राइटिंग, रीडिंग, सिनेमा एंड इवन लिटरेचर में पहले पुरुष ही थे, आदमी थे, मेन थे। तो उन्होंने अपने ढंग से औरतों का पक्ष लिखा, अपने ढंग से उन्हें समझा और उनके बारे में लिखा। धीरे धीरे बदलाव आया, मेरे जनरेशन से ही बदलाव आ गया और अब के जनरेशन में भी काफी है। उम्मीद करती हूँ कि आगे के जनरेशन में भी आएगा और बढ़ के। लेकिन ये एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। पेट्रियार्की जो है ना, वो ऐसे हम सबको वो कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता, हम खुद एज अ वुमन एजेंट बन जाते हैं उसके। वी कैरी फॉरवर्ड द ट्रेडिशन, ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग कैरेक्टर्स, विदाउट क्वेश्चनिंग पीपल लाइक सीता। नहीं, दैट वाज द हायर मॉरल ग्राउंड, सो शी हैड टू बी लाइक दैट। व्हाई? We need to question that. We need to teach our daughters and their daughters कि कैसे आपको हमेशा अपनी पोजीशन को लेकर क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक सोसाइटी को अच्छा हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए आप भी एक इक्वल स्टेक होल्डर हो। सिर्फ आदमी नहीं है और सिर्फ औरत नहीं, और भी जो हमारे LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, सारे लोग, सारी प्रकृति
Everybody is a stakeholder. And if we have not learnt it now in times of Corona, then when? We'll never again get an opportunity. Thank you, Mantana ji. Thank you for that inspiring, passionate, intriguing and elevating talk. You know, you add all the emotional and inspirational vitamins in our bloodstream. You're also brave enough to express your feelings without mincing your words, and hearing your words, the way you write, the way, you know, you speak them, and the way you see the entire world in this social and cultural context make all of us emote very similarly. We will take back that very strong message from you that never cease to miss an opportunity. With your travel, the way you soaked in the dappled cultural world, the world of women, and you know, you've almost become a beacon to sensitize society at large. Gender stereotyping needs to stop, and we have taken that message nice and clear. We cannot thank you enough for being a role model and for epitomizing being a Wonder Woman and being humane. Thank you from the bottom of our hearts on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Women of Udaipur. I also thank the audience for taking out their time on a Saturday afternoon and joining all of us today. Thank you so much. You keep our spirits flying. And we also request all the audience, in case you have, if you can share your Kindle accounts with us, it will be amazing. Thank you, Ridhima. Thank you, Vandana ji. And thank you, everyone else. Thank you so much, Swati. It's actually quite overwhelming for me to see you all speaking the same language. We all speak the same language. So it's not both the colors, but yes, all colors united together. We stand together and we must fight for women's causes. Thank you so much for inviting me over. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया.